Namaste everyone. Welcome to this new episode of Humans of Mahabharat with my sister Bhavna Didi and me Amish. आज जिस पात्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दीदी, perhaps one of the most fascinating characters of the Mahabharat, इतिहास की साहित्य की शायद सबसे रोचक पात्रों में से एक द्रौपदी माँ। आज द्रौपदी के बारे में बात करना था। हम दोनों लाल पहने हैं। बदले की आग में पैदा हुई। शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग द्रुपद, और द्रुपद जो थे वो बदले की आग में जल रहे थे बिकॉज ही हैड अ प्रॉब्लम विद हिज चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड द्रोण। और द्रोण ने अपने जो शिष्य थे कौरव और पांडव, उनके साथ युद्ध लड़ा, पांचाल पर अटैक किया। राजा द्रुपद पांचाल के राजा थे। एक बात, सॉरी काट रहा हूँ, ये कई लोगों को शायद मालूम ना हो, पांचाल आज का बरेली है। क्या बोल रहे हैं? ये एक्चुअली मेरे कुछ इतिहासकार दोस्त हैं, आवास वगैरह, वो कह रहे थे पांचाल आज का बरेली है। तो वो जो झुमका है वो द्रौपदी माँ का था। Sorry, coming back. तो द्रोण ने अपने शिष्यों के साथ द्रुपद को हरा दिया था। तो द्रुपद was burning with rage and he wanted revenge. लॉर्ड शिवा को उनने इन्वोक किया, यज्ञ किया। पहले पैदा हुए शिखंडी। He was born daughter actually, और एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषों ने बोला कि after a few years वो मर्द बन जाएंगे, राइट? लेकिन उसके बाद उन्हें और बच्चे चाहिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि द्रोण का नाश हो और कौरवों और पांडवों का भी नाश हो। तो फिर उन्होंने फिर से यज्ञ किया, ऋषि यज और ऋषि उपयज के साथ। अच्छा, इन दोनों ऋषियों ने भयंकर यज्ञ किया और पैदा किया एक मैजिक पोशन। तो वो मैजिक पोशन देना था रानी माँ को, लेकिन रानी माँ तैयार हो रही थी तो उन्हें थोड़ी देर हो गई और यज्ञ में वो आ नहीं पाए। तो यज और उपज जो ऋषि थे वो तो रेडी थे, तो उन्होंने ये पोशन आग में डाल दिया, क्योंकि बदले की आग में ही तो डालना था। और बाहर आए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ट्विंस। ओके, और दोनों 12 साल के थे जब पैदा हुए। हाँ, तो शिखंडी जो बड़े थे सबसे, वो तो ट्रांसजेंडर थे। धृष्टद्युम्न was all man, द्रौपदी was all woman, born for vengeance। अब वो पैदा हुए, बड़े हुए, और फिर स्वयंवर रखा। किनका? द्रौपदी माँ का। Renowned industrialist Mr. Harshvardhan Neotia on the Mahabharat. Draupadi, Krishna, Panchali, Yagyaseni, many names, one unforgettable woman. She wasn't born from a mother's womb, but from sacred fire, a daughter of destiny. Her father, King Drupada, had performed a great yagna seeking revenge against his old friend Dronacharya. From the flames, Draupadi emerged, radiant, strong, and already marked by prophecy. It was said she would bring about the destruction of kings. Her fate was written before she even took her first breath. Her life took a strange turn when she became the wife of all 5 Pandava brothers, a result of Kunti's innocent command to share what you have brought. Imagine that, one woman, 5 husbands, each so different, each carrying their own ambitions and flaws. Draupadi held them together with grace, intelligence, and astonishing strength. She was a queen who understood politics, power, and people, yet lived in a world that questioned her every move. Then came the moment that changed everything, the fateful game of dice. Wagered like an object, humiliated in front of an entire court, Draupadi was dragged into the assembly when Dusasana tried to strip her of her dignity. Her husband sat silent, her faith broke, but her spirit didn't. She called out to Lord Krishna and was saved. That moment turned her pain into fire. From that day on, she vowed that justice would be done. During exile,
She carried not just the weight of hardship, but of deep injustice. And yet, she never gave up. Draupadi became the strength her husbands needed to rise again. Her story still speaks to us today. She is in every woman who has been wronged but refuses to bow down. Every voice that rises against humiliation and demands fairness. She was beauty, courage, intelligence, pride, and above all, resilience. Draupadi was not just born of fire. She was fire, fierce, luminous, and unstoppable. अब उस समय ये जो पांडव थे हमारे, वो कुटिया में रह रहे थे अज्ञात तरीके से, क्योंकि वो लाख जो घर था उनका, उसे आग लगा दी गई थी। तो यहाँ इंद्रप्रस्थ में समझा जा रहा था कि वो तो उनकी मृत्यु हो गई है। वो क्षत्रिय थे, लेकिन कुंती माँ के साथ ब्राह्मणों के जैसे वो अज्ञात एक फॉरेस्ट में रह रहे थे। अब ये 5 ब्राह्मण जो हैं वो स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में दुर्योधन भी आए, लेकिन दुर्योधन की शादी हो चुकी थी भानुमति से, और निकलने के पहले भानुमति ने एक प्रॉमिस ले लिया कि देखो दुर्योधन, तुम स्वयंवर में पार्टिसिपेट मत करना। दुर्योधन ने बोला डन, लेकिन वो गए थे अपने मित्र कर्ण के साथ। तो दुर्योधन ने बोला कर्ण तुम पार्टिसिपेट करो। द्रौपदी बोली ना, सूत पुत्र हैं, नहीं कर सकते वो, ये क्षत्रियों का ये स्वयंवर जो है ये रचा जा रहा है। तो कर्ण बैठ गए। देखो ये इंसल्ट थी, कर्ण ने याद रखी। अब सब के सब आए, कोई वो धनुष नहीं उठा पाया। फिर अर्जुन उठे, लेकिन वो ब्राह्मण वेश में थे। हाँ, अब जब वो आए, द्रौपदी ने मना नहीं किया। वैसे अर्जुन हैंडसम भी थे लेकिन क्षत्रिय एक्चुअली वो थे, लेकिन ये द्रौपदी तो नहीं जानती थी। एनीवे, अर्जुन ने तो बस ऐसा भी हो सकता है शायद कर्ण से शादी करनी थी नहीं, कुछ रीजन निकाल लिया। दैट इज ट्रू। हाँ, कि वैसे तो कर्ण भी क्षत्रिय निकले आखिर। एनीवे, अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया। अब द्रौपदी को लेके अर्जुन और उनके और 4 भाई पहुंचे वापस कुटिया में, जहाँ कुंती माँ खाना बना रही थी। अब यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज एक इंसिडेंट हो गया, क्योंकि जब भाइयों ने बोला माँ देखो अर्जुन किसे लाया है, तो कुंती माँ ने बोला जो भी लाया है सब बांट लो, शेयर करो। अब ये तो थी द्रौपदी। इमेजिन अमीश, द्रौपदी की दुविधा, महलों में बड़ी हुई प्रिंसेस, सडनली देखती है अरे मैं तो कुटिया में आ गई। अब कुटिया में आके द्रौपदी से बोला जा रहा है कि आपके एक पति नहीं, आपके 5 पति हैं। कॉम्प्लिकेटेड ना, रियली कॉम्प्लिकेटेड। और एक तरह से उनका जन्म भी सिर्फ अपने पिताजी के प्रतिशोध के लिए हुआ। तो she was put up to challenges from birth itself। हाँ। और यहाँ पे भी कई लोग कहते हैं हाँ ये जो पॉलीएंड्री का जो मामला है, कई लोग कहते थे अरे ये क्या है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर पॉलीगैमी हो सकती है तो पॉलीएंड्री क्यों नहीं? या तो पॉलीगैमी भी ना हो, या पॉलीगैमी कर रहे हो तो पॉलीएंड्री भी करो, समानता होनी चाहिए। पॉइंट है ना। पॉलीगैमी मतलब कि 1 man can have many wives, पॉलीएंड्री मतलब 1 woman can have many husbands। और वैसे एक्चुअली हमारा एक एपिसोड हुआ था वृष्टि गुहा के साथ, एक पॉडकास्ट, जिसमें उसने उदाहरण दिए ऑफ पॉलीएंड्री, 1 woman विद मेनी हस्बैंड्स। इतिहास में भी, सिर्फ महाभारत में सिर्फ द्रौपदी माँ के साथ नहीं, दूसरे उदाहरण भी, और आज की तारीख में भी इन सम प्लेसेस, सम हिल ट्राइब्स उत्तराखंड में पॉलीएंड्री हो रही है। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली अगर कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये क्या है, यू नो 1 woman हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, कि भाई अगर आप पॉलीगैमी कर सकते हो तो पॉलीएंड्री क्यों नहीं? या तो पॉलीगैमी बैन करिए और पॉलीएंड्री भी, या दोनों को लागू करिए, है ना, समानता होनी चाहिए। पॉइंट। तो ये भी है कि द्रौपदी तो उस समय विचलित हो गई थी, तो श्री कृष्ण जो थे उन्होंने द्रौपदी को एडवाइस दी और सिचुएशन संभाली। और बोला कि ऐसा किया जाए कि द्रौपदी सिर्फ एक भाई की पत्नी 1 साल तक रहेगी, नो कंफ्यूजन। मतलब एक पति के पास द्रौपदी फिर से आएंगी 4 साल बाद। ओके, तो कुछ रूल्स
एस्टैब्लिश कर दिए। अच्छा, एक लोक कथा ये भी है कि श्री कृष्ण ने बोला कि एक प्रीवियस जन्म में द्रौपदी माँ ने लॉर्ड शिवा से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पति मिले जो ऑनेस्ट हो, जो बलवान हो, जो स्किल्ड हो, जो बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो और बहुत ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो। लॉर्ड शिवा ने बोला ठीक है, तथास्तु, हो जाएगा, लेकिन अगर सर्वगुण एक ही आदमी में हो तो वो तो डिवाइन बन जाएगा ना। तो ये सारे के सारे गुण प्राप्त हुए 5 हस्बैंड्स में। कमिंग बैक टू द्रौपदी माँ, ये सोचो कि महलों में बड़ी हुई प्रिंसेस थी, अब कुटिया में पहुंची। कुटिया में पहुंचने के बाद कुंती और अपने 5 पतियों के साथ वो वापस महल गईं। लेकिन फिर कहानी में फिर से ट्विस्ट आया और वो फिर से एग्जाइल पर गए। मतलब उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोचो, भयंकर उतार चढ़ाव। अच्छा, पांडवों की जो जिंदगी थी, कुंती माँ की जिंदगी थी, वो तो शुरुआत से कठिन थी, लेकिन द्रौपदी माँ तो द्रुपद की लाडली थी, महलों में बड़ी हुई थी। शी वॉजंट यूज्ड टू दिस, है ना, हैबिचुअल नहीं थी। लेकिन बाद में वो फिर से एग्जाइल पर गए। अच्छा, जब उनके शी हैंडल्ड इट, जब पति वापस एग्जाइल पर गए तो वो साथ में गई अमीश, और सीता माँ के जैसे, है ना, सीता माँ भी साथ में गई वनवास पे जब श्री राम गए। लेकिन उर्मिला जी नहीं गई थी। अच्छा, मैं बोलूं फिर कि आप तो हमारा नेचर जानते हैं, क्रिटिकल एडिशन के साथ हमें लोक कथाएं भी पसंद हैं, उपन्यास भी पसंद है। उसको मैं क्रिटिकल या क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, मत करिए। वैसे कुछ शास्त्रार्थ रूढ़िर बलियसी। हाँ, और जो कुछ ये कहानियां होती हैं ना अमीश, ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं होते, ये पुराणों में भी हैं। तो क्रिटिकल एडिशन छोड़ करके कुछ कहानियां विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, इनमें भी है भाई। करेक्ट है ना, तो इनको भी वैलिड समझा जाए। एब्सोल्युटली। एनीवे, एक उपन्यास थी, बहुत ही फेमस उपन्यास है, मम्मी की फेवरेट है, साकेत। लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं हिंदी भाषा के। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत लिखी वो उर्मिला के बारे में है। वो जो वनवास नहीं गई और 14 साल अपने पति से अलग रही, और उनकी जिंदगी वो भी कठिन थी। तो साथ में जाओ वो भी कठिन, जब अकेले रहो वो भी कठिन, क्योंकि लक्ष्मण से वो 14 साल अलग रही, और कहा जाता है कि 14 साल वो अपने बेड पे नहीं सोई, जमीन पे सोई, क्योंकि उनके पति जमीन पे सो रहे थे। तो कठिन होता है अमीश, यहाँ भी कठिन, वहाँ भी कठिन। मगर वापस आते हैं द्रौपदी माँ के वनवास में, क्योंकि फिर से जब वो गए तो अब इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ कि ये गए वनवास में, लेकिन पांडव थे भाई, विजिटर्स बहुत आते थे, है ना, ऋषिगण, कुरु राज्य से मंत्रीगण भी आते थे, मित्र भी मिलने आते थे। तो अब द्रौपदी माँ को मतलब कुटिया में महलों की खातिरदारी करनी पड़ती थी। सही है। और अतिथि देवो भव ना, ये तो हमारा कल्चर है। अमेज़न के जो आते हैं देने पैकेट्स, उन्हें भी पानी और चाय पिलाई जाती है ना। एटलीस्ट जो देसी घर है, जो भी घर में आता है, जो माँ हरदम कहती थी पानी नहीं दिए तो पाप कर रहे हो, और चाय और बिस्किट, चाय बिस्किट। तो यहाँ पर गेस्ट बहुत आते थे। तो श्री कृष्ण के एडवाइस पे युधिष्ठिर ने लॉर्ड शिवा से उपासना की, और उन्हें मिला वो अक्षय पात्र, एक ऐसी कुकिंग वेसल, खाना बनाने की हंडी, जो कभी खाली हुई नहीं जब तक द्रौपदी माँ खुद नहीं खाएं। अक्षय पात्र, ओके, सबको खिला सकती हैं वो। अंत में वो खुद खाएंगी और फिर जो हंडी है एम्प्टी हो जाएगी। अब एक बार ये हुआ कि ऋषि दुर्वास आए, ओके, फेमस। जिनको नहीं मालूम वो मैं समझा देता हूँ। ऋषि दुर्वासा एक ऐसे ऋषि थे जो मतलब महाज्ञानी थे, ब्राह्मण को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन गुस्सा तो हरदम उनकी नाक पे रहता था, और गुस्से में वो कुछ भी बोल देते थे। ये शिव जी को भी एक बार उन्होंने श्राप दे दिया, अपने आराध्य शिव जी को उन्होंने श्राप दे दिया था। तो अब ऋषि दुर्वासा आ गए और खाना खत्म हो गया था, द्रौपदी माँ ने भी खा लिया था, तो जो हंडी थी वो तो एम्प्टी थी। अब वो बोले अब क्या किया जाए, तो फिर से किसे याद करते हैं, श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण आ गए। अच्छा, तो श्री कृष्ण ने बोला, कृष्णा
हाँ, क्योंकि उनका नाम कृष्णा भी था। कई लोगों को ये नहीं मालूम है, द्रौपदी माँ वॉज एक्चुअली डार्क स्किन्ड एंड दैट्स व्हाई हर नेम वॉज कृष्णा एज वेल। कृष्ण लिटरली मीन्स डार्क स्किन्ड ब्यूटी, डार्क स्किन ब्यूटी, विच इन द इंडियन वे वाज द वे इट वाज सपोज टू बी। ये आजकल ये फेयर स्किन का जो ये भूत जो सवार है, ये तो ब्रिटिशर्स हाँ, ये ब्रिटिशर्स के बाद ही आया है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। श्री कृष्ण ने बोला, कृष्णा अक्षय पात्र लाओ, तो द्रौपदी लाई, विचलित थी लेकिन लाई। अच्छा, उसमें एक चावल का दाना बचा था, तो श्री कृष्ण ने वो चावल का दाना खा लिया और पता क्या हुआ, ऋषि दुर्वास का भी पेट भर गया और प्रॉब्लम सॉल्व। कृष्ण भगवान हरदम द्रौपदी माँ की सहायता के लिए एन मौके पर पहुंच जाते थे। हाँ, एक और बड़ी प्यारी सी कहानी है, मगध रीजन की कहानी है। हाँ। तो समझ लो पूर्वांचली रीजन की कहानी है कि हमारे पूरबिया साइड के। हाँ, तो ऐसा हुआ कि कुंती माँ को, अब सास ही तो बहू को ट्रेनिंग देती है, तो कुंती माँ को ट्रेनिंग देनी थी द्रौपदी को, भाई 13 साल गुजारने हैं, है ना, वनवास में। एक दिन उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी माँ को बहुत ही कम आटा दिया और बोला, अब इस थोड़े से आटे में तुम अपने 5 पतियों का पेट भर दो। अब द्रौपदी माँ ने देखा कि वो तो इतना सा था, अब ये तो भीम के लिए ही इनफ नहीं है, तो सबका पेट कैसे भरेंगी वो। तो उनको एक आइडिया सूझा। पता क्या आइडिया? नहीं, क्या? उनने छोटी 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 पूड़ियाँ बेली, पूरी की पूरी वो तली एकदम फैट हो गई। थोड़ा सा आलू था, थोड़ा सा चना था, अब उसमें थोड़ा आलू डाला, थोड़ा चना डाला और फिर पता क्या डाल दिया? पानी, फ्लेवर्ड पानी। क्या था वो? पानी पूरी। पानी पूरी। क्या कह रहे हैं आप? गोलगप्पे। तो ये जो है, हाँ। ये द्रौपदी माँ की रेसिपी है कि पानी पिला दो, हाँ, सबको पेट भर जाएगा। अरे वाह, हाँ, पानी पूरी द्रौपदी माँ का इन्वेंशन है। वाह, ये कभी सोचा था आपने? ये तो थी वनवास की कहानी की द्रौपदी माँ ने कैसे अपने पतियों को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने सास के साथ जो उनका जो रिश्ता था, डिस्पाइट शी बीइंग बोर्न इन अ महल, यूज्ड टू दैट। लेकिन अगर द्रौपदी माँ के बारे में बात करते हैं तो द की इंसिडेंट जो हरदम चर्चा होती है वो है चीरहरण की दूसरी बार वनवास हुआ क्यों? हाँ, है ना, करेक्ट, क्योंकि पहली बार तो ठीक है, 5 पांडव और कुंती माँ लाक्षागृह से बच गए थे और अज्ञात एक तरह से रह रहे थे, छुप के रह रहे थे। फिर स्वयंवर हुआ, फिर उन्हें वापस राज का कुछ भाग तो मिला, इंद्रप्रस्थ बनाया, तो फिर ये दूसरी बार जो वनवास फिर से हुआ और उसे साथ चीरहरण की कहानी भी जुड़ी। की इंसिडेंट ना, की इंसिडेंट महाभारत का की इंसिडेंट है ये। करेक्ट। चीरहरण, अमीश, मैं बात ही नहीं कर पाती हूँ, ऐसे लगता है रोंगटे खड़े हो गए। गलत था, बहुत गलत था। युधिष्ठिर की वीकनेस थी गैम्बलिंग, तो और शकुनी थे, शकुनी मामा, तो उन्होंने इनवाइट किया, जब ये इंद्रप्रस्थ में थे तो इनवाइट किया कि आप हस्तिनापुर आइए, और पार्टी में बुलाया गया। और जब आए तो शकुनी बैठे थे और उनके सारे के सारे कजिन्स कौरव्स बैठे थे गैम्बलिंग करने के लिए। और युधिष्ठिर अपने आप को, कभी ये उनकी बहुत बड़ी वीकनेस थी ना, बहुत ही बड़ा प्राइस पे किया इस वीकनेस की वजह से। एडिक्शन होता है, एडिक्शन होता है, तो बैठ गए वो और एक एक करके सब हार गए, अपना किंगडम हार गए, अपने भाइयों को हार गए, खुद अपने आप को हार गए, फिर अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया। पता नहीं क्या बोले इसके बारे में। इसीलिए तो महाभारत इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना अमीश, कि ऐसा थोड़ी है सिंपल, ये सही है वो गलत है, गलत में सही है, सही में गलत है। ये तो अति ही हो गई ना, कि बीवी को दांव पे लगा दिया, बीवी को दांव पे लगा दिया युधिष्ठिर ने। बाकी जो 4 थे वो चुप रहे, बोले नहीं, और बीवी को हरा दिया। उसके बाद दुर्योधन ने एक मेड को भेजा, द्रौपदी माँ की मेड को भेजा। लोक कथाओं ने उन्हें एक नाम भी दिया, प्रतिकामी, कि बुला के लाओ उन्हें।
यहाँ, क्योंकि अब वो तो हमारी हैं, हमने जीत लिया है उन्हें। तो प्रतिकामी जो थी वो गई और बोला कि द्रौपदी माँ से कि आपको तो आपके पति आपको दांव पे लगा दिए और जुए में हार गए। आपको सभा में दुर्योधन ने बुलाया है। तो द्रौपदी माँ ने बोला कि युधिष्ठिर से जाके पूछिए कि उनने अपने आप को पहले दांव पे लगाया या मुझे, क्योंकि अगर वो खुद को पहले हार गए तो उन्हें क्या हक है, हारे हुए इंसान को क्या हक है कि मुझे दांव पे लगाए, है ना। प्रतिकामी गई वापस। दुर्योधन को आया क्रोध, बोला नॉनसेंस, शी बिलोंग्स टू मी, लाओ वापस। प्रतिकामी फिर से गई और द्रौपदी माँ ने इस बार, शी वाज़न्ट गोइंग टू गिव इन इजीली, टफ वुमन। तो उन्होंने कहा कि आप जाके सभा में जो बड़े बैठे हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य, भीष्म पितामह हैं, धृतराष्ट्र हैं, भाई सब बैठे हैं, गांधारी माँ बैठी हैं, कुंती माँ बैठी हैं, उनसे पूछो ये सही है क्या, मैं इस घर की बहू हूँ और क्या ये सही है कि मुझे ऐसे बुलाया जाए। प्रतिकामी फिर से गई और जब फिर से गई तो दुर्योधन आपे के बाहर हो गए और फिर उन्होंने दुशासन को बोला कि जाओ लेके आओ। अब अमीश ये सोचो कि दुशासन की भाभी थी, लेकिन जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, तो दुशासन पहुंचे और कुछ बोला नहीं। और द्रौपदी माँ बैठी थी, खुले बाल, सिंगल रोब्ड साड़ी पहनी थी और बालों से पकड़ा और खींच के कॉरिडोर्स में खींच के वो ले गए, दुर्योधन के सामने पटक दिया। द्रौपदी माँ फिर भी उठी, ललकारा अपने पतियों को ललकारा, पहले दुर्योधन को ललकारा, कर्ण को ललकारा, अपने पतियों को ललकारा, फिर वहां बैठे बैठे बड़ों को ललकारा और सब अनर्थ हो रहा है। और पति बैठे थे सर झुका के और सबके सब मुंह छुपा के। फिर उन्होंने पुकारा श्री कृष्ण को कि मेरी रक्षा करो। जब इंसान नहीं काम आए तो भगवान ही काम आएंगे, और भगवान कृष्ण भगवान ने मदद की, क्योंकि दुशासन को ये आदेश दिया गया कि उनके वस्त्र खींचो, चीरहरण करो, और कृष्ण भगवान ने अपने आशीर्वाद के द्वारा एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो सारी कभी समाप्त ही नहीं हो रही थी। और उन्होंने सिर्फ द्रौपदी माँ को नहीं, धर्म को बचाया। जिन्होंने ये दुष्कर्म किया, जैसे दुर्योधन और दुशासन, उन्होंने तो पाप किया, लेकिन जो चुप बैठे थे उन्होंने भी पाप किया। वही कृष्ण भगवान ने बाद में बताया कि अगर पाप हो रहा है और तुम चुप बैठे हो तो उसका भी परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये वही मैं सोचता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ऐसा जब वो अज्ञातवास में थे तो कीचक ने भी एक बार ऐसा एक प्रयत्न किया था। तो दीदी, कीचक ने जो किया उसका दंड तो उसे मिला। जो चीरहरण जो अटेम्प्ट हुआ था, जो अलग इंसिडेंट था, अटेम्प्ट हुआ था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे पूरा, हाँ। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, स्पेशली जो आगे जिनके आज के टर्म में जो वोक लोग बोलेंगे कि ये कैसी संस्कृति है जहाँ पे चीरहरण हुआ तो यहाँ पे तो औरतों की इज्जत होती तो है ही नहीं। और शायद ये भी एक होगा कि कौन सा ऐसा समाज है जहाँ पे कुछ ऐसे बुरे मर्द नहीं हैं जिन्होंने ये दुष्कर्म नहीं किया है। कौन सा ऐसा इतिहास है जहाँ पे ये नहीं हुआ है। फर्क सभ्य और असभ्य समाज में ये है कि सभ्य समाज में जो आदमी ऐसा बुरा काम करता है उसे दंड मिलता है। असभ्य समाज में किसी तरह से जस्टिफाई कर दिया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं। जैसे हॉलीवुड पिक्चर और हमारे भारत के लिबरल्स भी एलाइज को बहुत बढ़िया बताते हैं और नाज़ीज़ को बहुत बुरा बताते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों गए गुजरे थे, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा, एलाइज सोल्जर्स ने, रशियंस, अमेरिकी, ब्रिटिश सोल्जर्स ने लाखों जर्मन औरतों का बलात्कार किया, लाखों। तो वो सब ठीक है क्या? क्योंकि वो तो जर्मन थे और ये हॉलीवुड पिक्चरें इन लोगों को हीरो बना दे रही हैं। पाकिस्तान में पता नहीं उनका क्या इंटरप्रिटेशन है कि काफिर औरतों को बलात्कार करना तो एकदम जायज़ है, पाकिस्तानी ये बोलते हैं। तो जो यूके में जो हुआ था, जहाँ पाकिस्तानी ब्रिटिश गैंग्स ने कई अंडर एज यंग वाइट गर्ल्स को सिस्टमैटिकली गैंग रेप किया, उनको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए उन लोगों को। कई लोग ऐसे बच भी गए और दशकों तक चलता रहा।
20-30 इयर्स ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में वो जस्टिफाई कर रहे थे कि ये तो काफिर औरतें हैं, वाइट वुमेन हैं, शॉर्ट्स पहन रहे थे, प्रोवोक कर दिया। तो दैट इज व्हाट इज असभ्य। सभ्य ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा बुरा काम करे तो उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, दंड मिलना चाहिए। जैसे कीचक को दंड मिला, जैसे दुशासन और दुर्योधन को, they weren't just killed, they were brutally killed by Bhim, which was the right thing to do. Because of the crime that they did. Not just that, जो चुप बैठे थे उनको भी तो दंड मिला ना because of this. So to me that is the key lesson from the चीरहरण episode. क्योंकि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे ये दुष्कर्म ना हुआ हो। कुछ बुरे आदमी तो हर जगह मिल जाते हैं। इसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और पनिशमेंट होना चाहिए। मॉडर्न इसमें मैं ये देखता हूँ कई बार ये कॉन्सिक्वेंसेस एब्रश कर दिए जाते हैं। जैसे वो दिल्ली जो गैंगरेप हुआ था, मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट थे, उन्हें मृत्यु दंड मिला, जो अच्छा था, जो अच्छी बात थी, मिलना चाहिए था। लेकिन जो मेन जो रेपिस्ट था जिसने उसे मारा, वो मोहम्मद अफरोज या पता नहीं क्या था, देवर सम लेफ्टिस्ट हु वर जस्टिफाइंग इट। अरे ये तो बेचारा बच्चा है, ही पेंट्स वेल, उसे माफ कर दो। क्या बकवास है ये? यू नो, या बॉलीवुड में भी जो होता है, स्टॉकिंग इज जस्टिफाइड। स्टॉकिंग तो हीरो कर रहा है, मतलब कीचक को उन्होंने हीरो बना दिया। विद द काइंड ऑफ सॉन्ग्स, लड़की की ना में हाँ है। क्या बकवास है ये? ना में ना है भाई। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो हाँ, और भी हसीन हो जाती है। साले को झापड़ मारना चाहिए। 100 बात की एक बात, औरतें ही सफर करती हैं। लेकिन चीरहरण के बाद जब वो वनवास में गए, यू नो, कमिंग बैक टू द बैक स्टोरी, तो 12 साल का वनवास था और 1 साल उसका 13वां साल जो था, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो अज्ञात, दे हैड टू बी इन हाइडिंग। और अगर उस 1 साल में वो पकड़े जाएं तो 12 साल का फिर से बहुत ही विचित्र काइंड ऑफ हाँ ये षड्यंत्र में फंसाया था। तो 13वें साल में पांडव द्रौपदी मत्स्य देश में रहे थे और वहाँ पे राजा विराट, क्वीन सुदेशना के साथ, और ये 6 जो थे ये अज्ञात थे। तो युधिष्ठिर बन गए थे कंक एडवाइजर। राजा विराट ये जानते नहीं थे। हाँ। तो वो अज्ञात वो भी थे, दे कैन नॉट बी डिस्कवर्ड। तो युधिष्ठिर से कंक एडवाइजर, और युधिष्ठिर की वो वीकनेस, एडवाइजर ही नहीं, वो विराट को फिर से जुआ, हाँ जुआ सिखाते थे। हाँ। ओके। अब बल्लभ जो थे वो भीम थे, फॉन्ड ऑफ फूड, तो वो तो किचन इंचार्ज बन गए थे। अर्जुन जो थे वो ट्रांसजेंडर बन गए थे 1 साल के लिए, बृहनला, और वो डांस टीचर बन गए थे। नकुल बन गए थे दमग्रंथ, इंचार्ज ऑफ ग्रूमिंग हॉर्सेस, और सहदेव बन गए थे तांतिपाल, गाय को संभालना, ही यूज्ड टू लव एनिमल्स। और द्रौपदी थी सैरंध्री, सुदेशना की मेड और उनकी ब्यूटिशियन। अब ये जो कीचक थे ये सुदेशना के भाई थे। ओके। और इन्हें द्रौपदी पसंद आ गई, स्टॉकिंग करने लगे, परेशान करने लगे। तो सैरंध्री जो द्रौपदी माँ थी वो गई रानी सुदेशना के पास कि आपके भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। तो सुदेशना ने भाई का साथ दिया और भाई की इच्छा हुई, सो सुदेशना ने सैरंध्री को बोला कि कीचक के कमरे में जाओ। ओके। तो सैरंध्री, अब द्रौपदी ये जानती थी कि कौन से पति के पास जाए वो, और वो गई भीम के पास। ये निर्णय बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर युधिष्ठिर के पास जाती तो वो सोचते अरे अज्ञात वर्ष है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज आवर आइडेंटिटी। अच्छा, बाकी जो 3 थे वो बड़े भाई की ही सुनते थे, ग्रुप थिंक करते थे। तो वो गई भीम के साथ, बिकॉज भीम वुड सेट असाइड एवरीथिंग एंड बी देयर टू प्रोटेक्ट हर। और ऑफ कोर्स भीम ने कीचक को मार डाला। अज्ञातवश वो मतलब वो पता चल गया, कहानी आगे बढ़ी। बट द थिंग इज स्टॉकिंग, यू आर राइट, बॉलीवुड ने कीचक स्टाइल को हीरो स्टाइल बना दिया है। अगर तुम बुरा काम कर रहे हो तुम्हें दंड मिलना चाहिए। ऐसे नहीं करे, बेचारा बच्चा है, गलती कर दी। जैसे यूके में मैंने देखा है कई लोग वो नाम भी नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी ब्रिटिश, एशियन ब्रिटिश बोलेंगे। मतलब क्या चाइनीज कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं, वैसा तो कोई पाकिस्तानी कर रहा है, और वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं पाकिस्तानी खुद कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन एक तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और बॉलीवुड आज तो बदल गया है, ये अच्छी बात है। आजकल ये सब बकवास नहीं दिखाया जाता है कि स्टॉकिंग इज गुड। एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस महाभारत जैसा होना चाहिए। तुम स्टॉक कर रहे हो, तुम हीरो नहीं हो, तुम कीचक हो, और तुम्हें दंड मिलना चाहिए। ये है हमारी सभ्यता। अच्छा अमीश, ये मानना पड़ेगा कि द्रौपदी माँ के एग्जाम्पल से आदमियों को बहुत सबक मिलते हैं कि औरत क्या होती है, औरत का स्तर क्या होता है, और ये हमारा कल्चर है। और
आदमियों को सभ्य होना चाहिए, औरत को प्रोटेक्ट करो। आई डोंट नो इफ इट्स पॉलिटिकली करेक्ट टू से दैट दीज डेज, लेकिन भाई टेस्टोस्टेरोन तो ज़्यादा आदमियों में है। हाँ। तो जहाँ ज़रूरत पड़े तुम तो भाई मुझे प्रोटेक्ट करो। कुछ सिचुएशंस में यू नो औरत को प्रोटेक्शन लगता है। और ये द्रौपदी माँ सिखाती हैं। लेकिन द्रौपदी माँ का अल्टीमेट लेसन पता क्या है, ये भी बोलना पड़ेगा कि वेंजेंस जो है वो चाहे राइटियस भी हो, सही भी हो, लेकिन वेंजेंस होती है, बदला होता है और हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो अंत में जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पांचों पांडव और द्रौपदी माँ पर्वत से सबसे पहले गिरती हैं। वेंजेंस का भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है। हाँ, और राइटियस वेंजेंस ज़रूरी होती है, लेकिन हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है ना। शायद ये बहुत अच्छा पर्व है इस एपिसोड को समाप्त करने का, क्योंकि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस होता है और होना भी चाहिए। और हाँ, ये द्रौपदी माँ से आपने सही कहा, आदमी भी बहुत सीख सकते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। और औरतें सीख सकती हैं। हाँ, कि कैसे आदमियों का चयन किया जाए। सभ्य आदमियों का। चलिए, आई होप यू enjoyed this episode of Humans of Mahabharat on Draupadi Ma. If you did, please hit like and subscribe below so that you can receive a notification when the next episode launches. तब तक भावना दीदी और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आप इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े।